Hello everyone, welcome back to the CT 360 degrees current affairs session. I welcome you all to this session. I hope you are doing well and I hope your preparation is going well. So in this series, we cover current affairs relating to the GA and ESI part of your syllabus, and I hope that you are liking these videos. We here particularly target the RBI and NABARD, but in case you are preparing for any other examination, then also this becomes important since we cover current affairs on day-to-day basis. And today we will be covering it from 21st of February to 23rd of February. So these 3 dates we are covering the current affairs from, and we cover it from all the important sources like the PIB, the Hindu and the Business Standard, so that you do not have to get into these topics. All you need to do is sit back, relax and watch these videos, and please keep on revising them because they contain important facts that needs to be retained, and retention के लिए you need to revise them. ठीक है? So I hope you are enjoying and liking these videos and they are helpful to you. All right. So before we begin, the quote of the day is mistakes, they are proof that you are trying. So in case you are making mistakes, that's okay. Don't be disheartened. Don't be sad because mistakes, they are a proof that you are trying, and trying is the most important thing. So try again till you succeed. All right. With that, let's see what are the today's topics जो हम cover करेंगे. The first is the India's first Namo Bharat Rail. It is first in news. Prime Minister Narendra Modi ने इनको inaugurate किया है. Then it is the International Mother Language Day being celebrated on 21st of February. हम ये भी करेंगे being days in news. And then UPI One World Wallet जिसको एक्सपैंड किया गया है. ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. एंड यूपीआई पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके इन एग्जाम, सो प्लीज मेक श्योर you remember this. It comes under the banking and finance sector. And then the two topics, they are the ESI part of your syllabus. The first is the merchandise trade indices. ठीक है, इसका बेस ईयर चेंज हुआ है, दैट इज वाई वी आर कवरिंग इट हियर. एंड देन इट इज बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है. स्किल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है, वी विल बी कवरिंग इट अंडर द सोशल डेवलपमेंट. सो आई होप यू आर क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट नमो भारत रेल इंडिया को मिल गई है. किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल and dedicated the Delhi Metro Meerut नमो भारत कॉरिडोर टू द नेशन. सो इट इज द फर्स्ट टाइम कि एक मेट्रो रेल एंड एक RRTS, एक रैपिड ट्रेन, एक रैपिड रीजनल ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही ट्रैक पर काम करेगी. ठीक है, वहां से ऑपरेट होगी. सो इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है. एंड इट इज फर्स्ट इन इंडिया दैट नमो भारत एंड मेट्रो ऑपरेट्स फ्रॉम द सेम स्टेशन एंड द सेम ट्रैक. सो बेसिकली मेट्रो, इट इज यूज्ड फॉर इंट्रा सिटी. व्हेन आप within Meerut you will be using metro, and in case you want to go to Delhi तो आपकी Delhi से connectivity इसकी बढ़ाई गई है. Then you will be using the RRTS, that is the regional rapid ट्रांजिट सिस्टम. सो बेसिकली ये एक हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, ये रैपिड ट्रेन्स हैं, फ्रीक्वेंट ट्रेन्स हैं. फ्रीक्वेंट एज इन जो दे आर बीइंग रन आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स. ठीक है, रैपिड हैं, फ्रीक्वेंट हैं, एंड दे कनेक्ट यू टू दिल्ली. ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए टू दिल्ली इनको ऑपरेट किया जा रहा है. सो सीमलेस ट्रैवल होगा, कंजेशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, स्मूदर एंड फास्टर आप जो है कनेक्टिविटी कर पाएंगे, आप दिल्ली तक पहुंच पाएंगे. सो इंट्रा सिटी आई हैव टोल्ड यू इट इज मेट्रो and direct Delhi connectivity, that is RRTS, from the same platform. So I hope you are clear with this. ठीक है, okay. So first is why why it matters. ठीक है, why it matters? It boosts to NCR connectivity. It faster होता है, smoother होता है, congestion free होता है. It is being said that more than 1 lakh vehicles रोड से कम हो जाएंगे due to this train. ठीक है, अगर हम देखिए ट्विन सिटी विजन को भी इनकलकेट करता है. बेसिकली नाउ इफ यू आर लिविंग इन मेरठ एंड यू वांट टू वर्क इन दिल्ली, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो आप डे टू डे जो स्टूडेंट्स हैं या जो वर्कर्स हैं, जो डेली ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. देन ये नारी शक्ति को भी प्रमोट करता है. कैसे नारी शक्ति को प्रमोट करता है? जो मोस्ट ऑफ द इनका स्टाफ है या ऑपरेटर्स हैं, दे आर वुमेन. सो ये विमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करता है. देन इट इज द सिंबल ऑफ विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत. इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का बढ़ रहा है तो इंडिया भी डेवलप हो रहा है. ऑलराइट, अगर हम पहले की बात करें, सो 2014 से पहले देयर वर ओनली 5 सिटीज जिन पे मेट्रो चलती थी, मेट्रो नेटवर्क था. बट अब कितनी है? 25 प्लस. तो कितना ज़्यादा बढ़ गया है हमारा मेट्रो का नेटवर्क. एंड इंडिया बेसिकली अब थर्ड लार्जेस्ट है ग्लोबली जिनके पास इतना ज़्यादा मेट्रो का नेटवर्क है. ठीक है, सो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क ग्लोबली.
एंड इंडिया जो है पावर हाउस भी बनता है. इट इज 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. ये सारी कनेक्शंस कनेक्टिविटी पहले सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में होती थी, बट अब इंडिया में भी आ रही है. सो इट सिग्नल्स, इट शोज कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ऑल्सो हैपनिंग. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. Moving on to the second news, that is the International Mother Language Day being celebrated on 21st of February. ठीक है, कब सेलिब्रेट होता है? 21st of February. टू प्रमोट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. तो अगर लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है, बट एक आइडेंटिटी है, एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन भी है. ठीक है, सो देयर इज अ नीड कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, एंड दैट इज व्हाई दिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड. अगर बात करें कि इसको स्टार्ट क्यों किया गया था, तो बेसिकली 1952 ढाका में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था जब एक डिसीजन आया था दैट पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू हो जाएगी, बट दे वांटेड कि बंगाली को भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए. दैट इज व्हाई दिस डे पर क्या हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई थी. ठीक है, मेनी लाइव्स दे वर लॉस्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस डे इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड. एंड इसको यूनेस्को ने 1999 में प्रोक्लेम किया था, डिक्लेयर किया था. ठीक है, ऑलराइट. अगर इस साल की बात करें, द थीम इज यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन. यूथ वॉइसेस का मतलब तो यूथ ड्राइवर्स हैं जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी मदर टंग को, अपनी स्मॉल लैंग्वेजेस को. ठीक है, बिकॉज वो वर्ल्ड में जाते हैं, दे गो टू स्कूल्स, इवेंट्स, वर्क करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे कैन प्रोटेक्ट देयर मदर टंग. एंड इन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, दैट मीन्स एजुकेशन मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए बाय स्टार्टिंग इन देयर मदर टंग, इन योर मदर टंग, एंड देन इंट्रोड्यूसिंग द अदर एडिशनल एडवांस लैंग्वेजेस. ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. सो दिस डे इट इज टू प्रिजर्व आर लैंग्वेज. सबसे पहले हमें अपनी जो मदर टंग है उसको प्रिजर्व करना होगा. ठीक है, सो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी डेट को ये मनाया जाता है एंड क्या थीम था. ठीक है, तो थीम था यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ऑलराइट, नाउ इट इज द UPI वन वर्ल्ड वॉलेट. इसको बेसिकली एक्सपैंड किया गया है, लॉन्च नहीं किया गया है, माइंडेड इसको एक्सपैंड किया गया है. लॉन्च इसको कर दिया गया था इन 2024 जब G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा था. ठीक है, तब इसको लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अब एक्सपैंड किया गया है 40+ कंट्रीज को जो AI समिट में आए थे उनको. ठीक है, 40+ कंट्रीज ड्यूरिंग द इंडियाज AI इम्पैक्ट समिट 2026. सो बेसिकली जब फॉरेनर्स पहले आते थे इंडिया में, उनको कैश की बहुत प्रॉब्लम आती थी. उनको प्रॉब्लम आती थी, दे डोंट हैव बैंक अकाउंट्स, दे डोंट हैव सिम कार्ड्स ऑफ इंडिया. So that is why India तो largely digital था. India was using UPI, but what was happening? They could not use the UPI system because they did not have all these things. तो अब इसमें expand किया गया है. What they can do is they can get the wallet, उसमें they can fund it, उसमें add कर सकते हैं अपने funds, and then they can directly using the QR supply payment कर सकते हैं merchants को. ठीक है, so this is why UPI वन वर्ल्ड वॉलेट को expand किया गया है. So foreigner travelers face forex issues and cash dependency and no access to the Indian bank accounts or the mobile numbers. ये सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया. अब रियल टाइम पेमेंट दे कैन यूज विदाउट द सिम और बैंक अकाउंट. उनको बैंक अकाउंट या सिम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो इशू लेंगे. ठीक है, डायरेक्ट वो वॉलेट्स का इशू लेंगे जो कि मिल रहा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एंड पेविलियन भारत मंडपम से. ठीक है, जहाँ पे AI का समिट हो रहा था. एंड देन यू कैन लोड योर मनी. ठीक है, आप पे कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग द QR कोड्स. ठीक है, एंड जो आपकी पेमेंट अनयूज रह जाएगी, जो फंड्स अनयूज रह जाएंगे, वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे यूजिंग दी फॉरेक्स नॉर्म के अकॉर्डिंग आपको वो फंड कर दिया जाएगा. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस एज वेल. सिग्निफिकेंस सिर्फ 1 सेकेंड लगाएंगे इस पे. लीडरशिप इन डिजिटल पेमेंट. सो बेसिकली इंडिया का पहले ही जो UPI सिस्टम है वो बहुत एडवांस्ड है बाकी कंट्री से. अगर हम फॉरेनर्स को भी इसमें इनकलकेट करते हैं तो वो और वास्ट हो जाएगा एंड इंडिया बिकम्स अ लीडर बाकी लोगों के लिए भी. इट स्ट्रेंथन्स द DPI डिप्लोमेसी, दैट इज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है. जो फॉरेनर्स हैं अगर हम उनको अपने DPI में इनकलकेट कर रहे हैं तो इससे ट्रस्ट बढ़ता है. ठीक है, एंड डिप्लोमेसी जो है, पार्टनरशिप है बेसिकली, वो बढ़ती है. एंड देन द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इकोसिस्टम फैसिलिटेटिंग स्मूथ एंड एफिशिएंट international payment process. So I hope you are clear with this as well. Moving on, then it is the merchandise trade indices. Basically एक statistical tool होता है जिससे कि प्राइस में क्या चेंज आया है इन imports and exports.
वो देखा जाता है, या क्वांटिटी में क्या चेंज आया है, या दोनों में कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। सो एक स्टैटिस्टिकल टूल है, एंड हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया है टू 2022 2023। पहले इट वाज 2012-13, बट अब हो गया है 2022-23। ठीक है। Basically, Directorate Journal of Commercial Intelligence and Statistics, they come under the Ministry of Commerce and Industry, revised the base year. Base year basically reference year होता है जिससे कि आप डेटा को कंपेयर करते हैं। क्यों किया गया है? ट्रेड बास्केट में चेंजेस देखे गए हैं। अर्लियर देखा जाता था कि जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट्स है, जो इंपोर्ट्स हैं, वो किस चीज़ों के होते थे? दे यूज टू हैपन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दे यूज टू डू इन टेक्सटाइल, दे यूज टू डू इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आज की बात करें, they are being done in electronics, they are being done in mobile phones, they are being done in renewable energy components। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो components हैं उनमें हो रहा है। that is why there was a change, क्योंकि जो लास्ट डेटा था वो आज की रियलिटीज को डिपिक्ट नहीं करता। then it is the new commodities and supply chain, तो supply chain after covid and due to the geopolitical चेंजेस जो आए हैं बहुत बदल गई है। सो उसको इनकलकेट करने के लिए इसको चेंज किया गया, एंड मैक्रो इकोनॉमिक अलाइनमेंट के लिए। सो जो बेसिकली आज का डेटा है वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेसिकली अलाइन करने के लिए ये चेंज को लाया गया। ऑल राइट, तीन चीजें, मर्चेंडाइज, ट्रेड एंड डाइसेस, वैसे तो आप इसको इन डिटेल आप करते हो अपने सिलेबस में, बट सिर्फ एक बार देख लेते हैं कि ये क्या कैलकुलेट करता है। ये तीन चीजें कैलकुलेट करता है। द फर्स्ट इज द यूनिट वैल्यू इंडेक्स। सो बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स हैं उसके प्राइसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं, इसको ये मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट ईयर हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे थे फॉर द ₹100 एंड अब हम कर रहे हैं फॉर ₹120, दैट मीन्स यूनिट वैल्यू इंडेक्स ग्रो हुआ है, बढ़ा है। देन इट इज द क्वांटिटी इंडेक्स की वॉल्यूम कितना है। ठीक है, वॉल्यूम कितना बड़ा है। सो बेसिकली इफ लास्ट ईयर हम 1000 टन्स ऑफ राइस कर रहे थे, ठीक है, 1000 टन्स ऑफ राइस कर रहे थे, एंड दिस ईयर हम 12,000 टन्स ऑफ राइस कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑल्सो कि QI, दैट इज द क्वांटिटी इंडेक्स, इट हैज इंक्रीज। तो इवन इफ हमारा जो प्राइस है वो सेम रहता, तब भी अगर वॉल्यूम बढ़ी होती तब भी QI बढ़ जाता है। ठीक है, एंड देन इट इज द term of trade which is the comparison between the two, the exports and the imports, की export के prices बढ़ रहे हैं या import के बढ़ रहे हैं। अगर exports के बढ़ रहे हैं, that is a good situation for India। For example, अगर export की बात करें 10% price rise देखा गया है and import में सिर्फ 5% rise देखा गया है, so that is a good situation for India। So I hope you are clear। base year याद रखिएगा कि इसको change कर दिया गया है, which is what, which is 2022 and 2023। ठीक है, लास्ट, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। सो दे बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया, जयंत चौधरी, ये यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने कहाँ किया? इंडियन AI इम्पैक्ट समिट में किया। ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जो बूस्ट कर रहा है डिजिटल स्किल रेवोल्यूशन को। हम चाहते हैं जो हमारा यूथ है वो डिजिटली स्किल हो, बिकॉज डिजिटल AI इज द फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर अब तो आ गया है, तो हम चाहते हैं जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्किल्ड हों, आज के जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड वो स्किल्ड हों। ठीक है, एंड अमिताभ बच्चन को इस कैंपेन का फेस रखा गया है। हम ये क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज AI ऑटोमेशन ये बहुत हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वी वांट जो हमारे अब जो काम करने वाली वर्कफोर्स आ रही है उनके पास वो एम्प्लॉयबल रहे, वो आउट टू डेट ना हो जाए बट वो अप टू डेट रहे, दैट इज वाई। ठीक है, एंड पुश टुवर्ड्स विकसित भारत एज वेल, विकसित भारत, क्योंकि हमें स्किल्ड यूथ मिलेगी, उससे क्या होगा, जो हमारी यूथ अगर स्किल्ड होगी तो इट विल डेवलप, इट विल हेल्प इंडिया टू बिकम डेवलप। ठीक है, तो विकसित भारत के विजन पे जाता है। ओके, तो ये बेसिकली इंजन बिहाइंड इसका क्या है, सिद्ध, जो आपने ESI में पढ़ रखा है, इट इज द स्किल इंडिया डिजिटल हब कॉल्ड सिद्ध। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, AI इनेबल्ड है, जिसमें लर्निंग, सर्टिफिकेशन एंड जॉब क्रिएशन तीनों एक ही प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट की गई है। इसकी फुल फॉर्म है स्किल इंडिया डिजिटल हब। तो ये इंजन बिहाइंड क्या है, सिद्ध, जिसके 1.5+ करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि सिद्ध क्या होता है, सिंस इट इज द इंजन बिहाइंड इट। तो सिद्ध बेसिकली क्या करता है, ये मोबाइल फर्स्ट AI इनेबल्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग
पाथवे है। मैंने आपको बता दिया ये एक AI इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। वहां पर उनको जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी कनेक्ट किया गया है। तो इन तीनों चीजों को कनेक्ट किया गया है। आपको जस्ट एक मोबाइल फोन चाहिए, उसमें आप अपना ये डाउनलोड कर सकते हैं एंड इट इज AI enabled personalized learning। तो पर्सनलाइज्ड है। AI will tell you according to your interest and your goals कि आपको कौन से courses लेने चाहिए, what will be beneficial for you। It integrates multiple government skilling schemes on one platform। अब आपको हर different websites की तरफ जाने की जरूरत नहीं है to know about the skilling schemes। सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंडस्ट्री अलाइंड फ्यूचर रेडी कोर्सेज। सो बेसिकली व्हाट इज द फ्यूचर? इट इज AI, इट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इट इज ऑटोमेशन। तो वो सब सिखाते हैं। वो जो कोर्सेज हैं दे फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। आधार, eKYC, OTP, लॉगिन, डिजिटली वेरीफाइड क्रेडेंशियल। सो बेसिकली सिक्योर बनाने के लिए ये सब यूज किया गया है। QR इनेबल्ड डिजिटल CVs फॉर जॉब रेडीनेस। तो आप QR से अपने एम्प्लॉयर्स को बेसिकली डायरेक्ट CVs भेज सकते हैं सो दैट दे कैन एम्प्लॉय यू। एंड इट इज अवेलेबल इन 21+ इंडियन लैंग्वेजेस फॉर नेशन वाइड इंक्लूजन। सो बेसिकली नॉन इंग्लिश स्पीकिंग को पीपल को भी ये जोड़ता है अपने साथ। ये रूरल एरियाज के लोगों को भी अपने साथ जोड़ता है एंड इट इनकलकेट्स 21+ इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये बेसिकली इंक्लूसिव डेवलपमेंट शो करता है। ठीक है। बेनिफिशरीज इसके कौन है? स्टूडेंट्स जो अपना करियर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स एंटरिंग द वर्कफोर्स, प्रोफेशनल्स जो अपना स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं, दे ऑल्सो यूज, एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन। सो एंटरप्रेन्योर्स को भी एम्प्लॉयज भी मिल सकते हैं और वो अपना स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, सो एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। जस्ट एनीवन हु हैज अ फोन वो बेसिकली क्या कर सकते हैं? स्किल्स अपने अपग्रेड कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। इट ब्रिजेस द गैप। जिनको AI रिलेटेड स्टफ या कोडिंग नहीं आती है, ऑल दिस यू कैन learn from there and global skill capital. So it positions India as the global skill capital. So I hope you are clear with all the topics that we have covered today. काफी easy topics थे, कुछ बहुत difficult नहीं था and I hope आपको मजा आया होगा. So now we will be moving to the MCQs and I want you to please pay attention here and please keep on participating. As I read आप भी comment कीजिए so that मुझे पता लग सके कि आपको concept clarity हुई थी. ठीक है? So the first question is, which of the following features makes the Delhi Metro Namo Bharat corridor historically unique in India's urban transport architecture? It is India's first fully underground high-speed rail system. It integrates freight and passenger rail on a dedicated corridor. Metro and RRTS, they operate from the same station and share the same track infrastructure. It is financed entirely through multilateral climate fund. Yeah, it replaces conventional Indian railway services in NCR. What do you think is the right answer? So it is that Metro and RRTS, they operate from the same station and share the same track infrastructure. Answer is C. ये हमने यहाँ पर पढ़ा था. I hope you are clear with this. ठीक है. Question number 2. Okay. So International Mother's Day, it is being observed on which day? Which was it? Right, so it is 21st February. So the answer is option B. Question number 3. Which of the following features strengthens SID's role as a digital public infrastructure platform? What do you think is the right answer? So which of the following features they strengthen SID's role as a digital public infrastructure? So the answer is C, that is Aadhaar-based eKYC, OTP login and digitally verified credentials. Question number 4. The recent revision of India's merchandise trade indices shifted the base year to 2022 and 2023 primarily to. ऐसा क्यों किया गया है? What do you think is the right answer? Align trade data with GST implementation year, reflect the current global trade structure with updated commodity weights, convert all indices into chain-based indices, replace the formula with the PASH method, या integrate service trade into merchandise indices. What do you think is the right answer?
राइट, सो इट इज बी, दैट इज रिफ्लेक्ट द करंट ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर को हम समझ सके इसलिए किया गया है विद अपडेटेड कमोडिटी वेट्स। कमोडिटी वेट्स भी जैसे मैंने आपको बताया जो एग्रीकल्चर है या टेक्सटाइल है उनको पहले ज्यादा वेटेज दी गई थी, लेकिन अब जो ज्यादा यूज होती है उसको ज्यादा वेटेज दी गई है। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी के कॉम्पोनेंट्स है या इंडस्ट्रियल के जो कॉम्पोनेंट्स है उनको ज्यादा वेटेज दी गई है। ठीक है, तो बेस ईयर चेंज हुआ है, बास्केट में चेंज आया है एंड वेटेज में भी चेंज आया है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द कैंपेन बढ़ना है तो जुड़ना है was launched with primarily objective of, क्यों किया गया है? What do you think is the right answer? Expanding India's semiconductor manufacturing capacity, promoting India's digital skill ecosystem through SIDH, establishing AI regulatory sandboxes in all states, introducing a new national education curriculum, replacing existing Skill India schemes. So what do you think is the right answer? It is B, that is promoting India's digital skilling ecosystem through SIDH. So I hope you are clear. Now I have a homework question for you. The UPI one word wallet initiative is best understood as अक्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म, क्या वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है? अ प्रीपेड डिजिटल वॉलेट इनेबलिंग रियल टाइम P2M UPI payments without Indian SIM or bank accounts, a remittance platform exclusively for the non-resident Indians, a bilateral fintech arrangement between India and G20 nations, a sovereign digital currency पायलट अंडर द RBI। तो यहाँ G20 वर्ड आ गया है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। प्लीज कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड मैं जरूर देखना चाहूंगी कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू want the PDF of this session that will be available in our Telegram channel, please do join it। वहां पर और भी जो भी important sessions होते हैं उस सबके PDFs and important information आपको दी जाती है। The link for the channel is in the comment in the descriptive box below। all right, so with that आज का सेशन यहीं खत्म होता है। We will be back with another set of current affairs. Till then please like, share and subscribe to our channel. Thank you।